ہاں چل شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں. ہم سال دوم کا سبق نمبر 9 مولانا ظفر علی خان کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے پہلے 3 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں. آج اس سبق کا آخری لیکچر آپ سے میں مخاطب ہوں. ہم اس سبق کے تیسرے صفحے اور کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر تھے. آخری بات ہم نے یہ کی تھی دوسرے شعر کے حوالے سے، سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار. ابھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص بحث کر رہا ہے مصنف چراغ حسن حسرت سے کہ مولانا کے ہاں حقیقی شاعری نہیں ہے، عشق و محبت کی شاعری نہیں ہے. لیکن مولانا کا یہ شعر سن کر بہت زیادہ حیران رہ گیا. اس سے آگے بات شروع کرتے ہیں. مصنف حسرت بیان کرتے ہیں کہ میرے اس خاکے کا مطلب مولانا کی شاعری پہ بحث کرنا نہیں ہے. میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے عرض کی تھی کہ اس میں مولانا کی سیاسی یا بطور شاعر خدمات کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں صرف ان کی ذاتی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ آ گئی. برسبیل تذکرہ کہتے ہیں یعنی ایسی بات میں سے بات نکل آنا. صرف وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا شعر بہت سہولت سے روانی سے کہتے تھے. ان کو اشعار کہنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا. جس طرح میں اور آپ نثر لکھتے ہیں روانی سے فلو میں، مولانا اسی رفتار سے شعر کہتے تھے. وہ عام طور پہ آدھے گھنٹے میں ایک نظم مکمل کر لیا کرتے تھے. بہت کم نظمیں ہیں جن پہ انہوں نے گھنٹے 2 گھنٹے لیوں، ورنہ عام طور پر جو بڑی شاہکار نظمیں ہیں وہ آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیتے تھے. ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جی، پتھر نکال ہمسر نکال. یہ ایک طویل نظم ہے، 17 شعر ہیں اس میں، 17 جو انہوں نے 1 گھنٹے میں لکھے. ایک تقریباً 3 سوا 3 منٹ میں ایک شعر، 17 شعروں کی نظم 1 گھنٹے میں لکھی ہے. اس کا آخری شعر انہوں نے اس میں دیا ہے کتاب میں. تو غزل خانی پہ آ جائے تو ہے خواجوئے وقت، زلف عنبر بار سے کشدم بکھیر ازدر نکال. مفہوم سمجھیے. تو یعنی مولانا مخاطب ہیں اپنے آپ سے، اپنی شاعری کا ذکر کر رہے ہیں. یا ایک اور مفہوم بھی اس کا ہو سکتا ہے جو بعض کتابوں میں دیا ہمیں، خواجو کرمانی یہ وقت کے بڑے شاعر تھے. تو ایک تو تاثر یہ بنتا ہے کہ وہ خواجو کرمانی سے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے آپ کے بارے میں. دونوں مفہوم نکلتے ہیں کہ تو غزل خانی پہ آ جائے تو ہے خواجوئے وقت، یعنی تو اپنے وقت کا خواجو ہے، خواجوئے وقت ہے یعنی اپنے وقت کا بڑا شاعر ہے. ایک اور ضمیر رکھیے، خواجہ بڑے آدمی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے شعبے کا بڑا برتر، اس کو بھی خواجہ کہتے ہیں عظمت کے معنی میں. وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے خواجو کرمانی ایک شاعر، ان کا والا بھی ہو سکتا ہے کہ تو پھر خواجوئے وقت ہے یعنی اپنے وقت کا. ایک تو پہلے شاعر گزرے نا جی، خواجو کرمانی پہلے شاعر گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں تم اپنے وقت کا خواجوئے وقت. تو وہ اپنے آپ کو بھی خواجوئے وقت کہتے تھے. اور دوسرا بھی اشارہ ہو سکتا ہے یعنی اگر تو شاعری کرنے لگے تو تو اپنے وقت کا بڑا شاعر ہوگا. اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر تم شاعری کرو تو تم جیسا شاعری کوئی کر نہیں سکتا. کس طرح سے؟ زلف عنبر بار سے. عنبر کہتے ہیں خوشبو، یعنی جب شاعر یاد کریں جب وہ محبوب کی زلفوں کا ذکر کریں تو پڑھنے والوں کو اس میں سے خوشبو آتی محسوس ہو. یعنی محبوب جب زلفیں بکھیرے تو ہواؤں میں خوشبوئیں بکھر جائیں.
मैं यूं जिक्र करूं। यानी वो कहते हैं मेरी शायरी इतनी जानदार होगी कि जब मैं शायरी में भी महबूब की जुल्फों का जिक्र करूंगा तो उसकी खुशबू हवाओं में बिखर जाएगी। जुल्फे अंबर बार से कशदम बखेर, कशदम कहते हैं बिच्छू को, बिच्छू जो डसता है। आपने रिवायती शेरों में पढ़ा होगा, फिल्मी गानों में इस तरह की होती है कि क्या महबूब की जुल्फे जो आशिक को डसती हैं। तो कहते हैं मैं जब जुल्फों का जिक्र करूं तो तुम्हें चलते फिरते बिच्छू नजर आएंगे, डसते बिच्छू नजर आएंगे। अजदर निकाल, अजदर कहते हैं बड़ा सांप, अजदा कह रहे बड़ा सांप। तो वो एक बात बनी होती है जी, महबूब की नागन जैसी जुल्फे, वो नाग यूं लहरा के चलते हैं तो वो महबूब ने जुल्फों में जो बल दिए होते हैं तो उसको कहा जाता है नागन जैसी जुल्फे। तो शायर कहते हैं कि अगर वो शेर कहने पर आ जाएं और अपनी शायरी में महबूब की जुल्फों का जिक्र करें तो पढ़ने वाले को वो शेर नहीं लगेगा, बिच्छू चलते फिरते नजर आएंगे, डसते नजर आएंगे, सांप अजदहे रेंगते नजर आएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि वो शायरी में इस कदर हकीकत का रंग भर देंगे कि पढ़ने वालों को शेर नहीं लगेगा, वो जो शेर में बयान कर देंगे लोगों को वो हकीकत में चीजें नजर आया करेंगी। एक अच्छे अदब की शेर की यही पहचान होती है कि पढ़ने वाला उसमें गर्क हो जाए, उसमें आप कहते हैं इन्वॉल्व हो जाए। तो ये वही बात हो रही है। आपको हमारे एक प्रोफेसर साहब मिसाल दिया करते थे कि तुम गुलाब का जिक्र यूं लिखो कि पढ़ने वाले को उसमें से गुलाब की खुशबू महसूस हो। तो ये वही बात है। पत्थर निकाल हमसर निकाल जो 17 शेरों की नज़म में 1 घंटे में लिखी गई, ये उसके आखिरी शेर का जिक्र आया। अजीज तुलबा, तीसरे सफ़े पर इस शेर के बाद अगला पैराग्राफ बहुत मज़ेदार पैराग्राफ है। अक्सर तुलबा इसको समझ नहीं पाते, सो लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं हो सकते, इम्तिहान में लिख भी नहीं सकते। तो मैं आपको ज़बानी समझा दूं। तीसरे सफ़े का आखिरी पैराग्राफ। छोटे और बड़े शायर में एक बुनियादी फ़र्क होता है। बड़ा शायर जिस तरह भी आप कोर्स की वो सहूलत से शेर लिख लेते हैं। मौलाना ज़फ़र अली खान शेर लिखने पे आते थे तो आधे घंटे में नज़म मुकम्मल कर देते थे। बड़ी बड़ी नज़में बहुत कम वक्त में लिखी उन्होंने। छोटे शायर का मसला ये होता है, जब वो शेर कहेगा, लफ्ज़ लिखेगा, मिटा देगा, काट देगा, तब्दील कर देगा, मिसरा तब्दील कर देगा, शेर तब्दील कर देगा, लेकिन शेर उससे फिर भी नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो झुंझलाहट में अपने पे भी गुस्सा निकालेगा, दूसरों पे भी गुस्सा निकालेगा। कभी बीवी से लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है कि तुम बोली तो वो एक शेर अनका मजमून का, अनका कहते हैं फर्जी परिंदा जो बुलंदी पे रहता है, यानी मैं वो परिंदों को पकड़ना चाह रहा था, तुमने शोर किया, मेरे हाथ से निकल गया। यानी मेरे जहन में एक अच्छा शेर आ रहा था लेकिन तुमने बात की तो मैं शेर भूल गया। बीवी को पीटने लगते हैं, मार कुटाई करने लगते हैं, और अगर बीवी ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवान है तो भी से खुद पिट जाते हैं, मतलब गुस्से में आ जाते हैं। बच्चों को डांटने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, कम वक्तों मलून लानत भेजना कि तुम्हारे शोर से मैं शेर भूल गया। असल बात यह है कि उनमें ये कुदरत नहीं होती कि खुद शेर कह सके, तो फिर दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं, अपने आप से खफा होते हैं। ये बात इसके अंदर की गई है। मिसाल बड़ी ज़बरदस्त दी गई। अंदर लिखा है जी, हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती साहब का नाम। हकीम साहब बाकायदा हिकमत भी करते थे, अदवियात भी देते थे और एक अच्छे शायर भी थे। बड़े शायर थे, उस्ताद शायर थे। उस्ताद शायर कौन होते हैं? अपने शागिर्दों की इस्लाह करते हैं। अगर शागिर्द से शेर ना बन रहा हो तो उस्ताद रहनुमाई कर देते हैं कि मियाँ इस लफ्ज़ को यूं यूं इस्तेमाल कर दो तो शेर बन जाएगा। तो छोटे शायर जब शेर नहीं कह पाते थे तो वो किसके पास आते थे? हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती साहब के पास आते थे। इनकी मदद से, इनकी रहनुमाई से, इनकी इस्लाह से शेर कह पाते थे, वरना शेर कह नहीं सकते थे। मिसाल बड़ी दिलचस्प थी। हकीम साहब क्योंकि हिकमत भी करते थे, दवाई भी देते थे, तो वो आया हफ्ते भर का मुसल ले लेते थे। मुसल किस दवाई को कहते हैं कि आप इस तरह समझें कि खाया पिया हो और यानी इनपुट तो हो गया, अब आउटपुट नहीं हो रहा।
वो प्रोसेसिंग में, प्रोसेसर में मसला आया हुआ है, आउटपुट हो नहीं रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे दवाई लेते हैं ताकि अखराज सहूलत के साथ हो जाए, वो कब्ज़ जिसको आप कहते हैं। तो आम आदमी का जब पेट खराब होता है तो वो अखराज के लिए हकीम से दवा लेता है तो इस काबिल होता है। और ऐसे ही जब शायर से शेर नहीं बन रहा होता, शेर कह नहीं पा रहा होता, तो वो सीनियर शायर के पास जाता है तो तब इस काबिल होता है शेर कहने के। हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती साहब दोनों काम करते थे। वो जिस्मानी आउटपुट की भी दवा देते थे और शायर का शेर फंसा होता था तो उसको भी दवा देते थे, और फिर वो रोज़ एक शेर सहूलत से कहता था। तो ये मजाक से आ गया हफ्ते भर का मुसल, यानी वो दवा जिसकी मदद से आसानी से शेर कह सकते थे। तो बात समझिए, यह मज़ा पैदा किया गया है कि जिस तरह हकीम की दवाई के बगैर अखराज नहीं होता, इस तरह छोटे शायर जब तक बड़े शायर से सलाह ना ले लें उनसे शेर नहीं होता। इसका मफ़हूम देखिए। पहली बात क्या हुई कि मौलाना के अशार कहने की रफ्तार, वो बड़ी रफ्तार से शेर कहते थे, बहुत कम वक्त लेते थे, जबकि आम शायरों को मुश्किलात पेश आती है। आम शायर शेर नहीं कह पाते, रहबरी के बगैर उनके शेर नामुकम्मल होते हैं जब तक कोई रहबरी ना करे, गाइड ना करे, यानी दवा ना दे। तो हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती साहब से रजू करते हैं, रहनुमाई करते हैं, मुसल लेते हैं, और फिर इस काबिल होते हैं कि रोज़ एक शेर कह सके। खुद उनको अपने पे इतनी कुदरत नहीं होती। फिर आपको बताया दूसरों पर भरम होते हैं। आम शायरों की बात हो रही है, जब वो शेर कहने में कामयाब नहीं होते दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं। मगर मौलाना ज़फ़र अली खान का ये मसला नहीं था। वो मैं और आप जिस तरह नसर कहते हैं, मौलाना उसी तरह से शेर कहते थे। अजीज़ तुलबा, तीसरे सफ़े पर आखिरी पैराग्राफ की 2 लाइनें वो भी बड़ी दिलचस्प है, जो अगले सफ़े तक जा रही है बात। मौलाना जब दफ्तर में होते थे तो बड़ी चहल पहल है, रौनक मेला लगा हुआ है, शोर शराबा हो रहा है, काम बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, एक यानी एक चहल पहल होती थी। जब मौलाना दफ्तर में नहीं होते थे तो आमतौर पर सुकून से काम होता था, खामोशी से, लेकिन जब मौलाना होते थे तो बड़ी रौनक और चहल पहल होती थी। इसमें किसी हद तक एक शख्सी खामी का जिक्र भी आ गया। मौलाना ज़फ़र अली खान बहुत बड़े इंसान हैं, खूबियाँ खामियाँ इंसान के साथ होती हैं। आमतौर पर जब इंसान एक काम कर रहा हो तो तवज्जो काम की तरफ होती है, लेकिन मौलाना को कोई अच्छा शेर नज़म आती थी तो सबको बुला लेते थे काम से कि आओ पहले अशार सुनो। इससे ज़ाहिर है, जिससे इंग्लिश में आप कहते हैं वो बंदा डिट्रैक होता है, लेकिन बहरहाल मौलाना की आदत थी, सबको शेर सुनाते थे, अपना कलाम सुनाते थे। लेकिन एक और बात भी थी कि अगर कोई और अच्छा शेर या कलाम कहता तो उसको भी सुनते थे और भरपूर दाद देते थे, तारीफ़ करते थे। आमतौर पर शायर समझते हैं मैं ही अच्छा शायर हूँ और कोई अच्छा शायर नहीं, मगर मौलाना के यहाँ ये मसला नहीं है। दूसरों की भरपूर तारीफ़ करते हैं। राकम का मतलब जिसने लिखा, मतलब मुसन्नफ़ राइटर हसरत बयान करते हैं कि मैंने एक दफ़ा फ़क़ात सुनाई, मज़ाहिर मनून सुनाया, इतना खुश हुए जेब से बटवा निकाल के रख दिया कि इसमें जितने पैसे हैं सारा तुम्हारा इनाम। मतलब दूसरों की भी हौसला अफजाई किया करते थे, उनके होने से बड़ी रौनक रहती थी। मगर एक आखिरी दिलचस्प बात, इसके बावजूद दफ्तर के लोग ये दुआ करते थे कि मौलाना किसी दूसरे शहर चले जाए, और अक्सर उनकी दुआएं कबूल होती थी। वो ये दुआ क्यों करते थे, ये बात भी समझ लें। मौलाना जब दफ्तर में होते थे तो वो स्टैंडर्ड पे, मायार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। उनका जो अखबार जिम्मेदार था, जहन में रखें, वो सिर्फ एक आम अखबार नहीं था। मैंने पहले लेक्चर में तफसील से बातें की आपसे। वो आम अखबार नहीं था, वो फिक्री और अमली रहनुमाई करता था, वो लोगों को तरबियत देता था। लोग इंतज़ार करते थे अखबार के आने का, सिर्फ खबरों पढ़ने के लिए नहीं, वो एक तरह की सियासी रहनुमाई करता था। अखबार बहुत बड़ा किरदार है आपके अखबार ज़िम्मेदार का बड़े सगीर के मुसलमानों की तरबियत में, बसीरत में। लिहाजा अगर कोई इबारत गलत होती, ग्रामर की गलती होती, तो आप उसको कहते दोबारा लिखिए। और ज़हन में रखिए, वो कंप्यूटर का दौर नहीं था, हाथ से कॉपीज़ बनाई जाती थी। अगर एक लफ्ज़ गलत हो तो इसका मतलब होता था कि सारा सफ़ा दोबारा लिखा जाए। यूँ नहीं कंप्यूटर पे कि आप एडिट करके दोबारा प्रिंट निकाल लें।
तो जब छोटी सी गलती हो और मौलाना कहते नहीं ये गलत है, इसको दोबारा लिखो, वो सारा सफ़ा दोबारा लिखते, और मुमकिन है फिर कोई और गलती हो जाती, फिर दोबारा लिखो, फिर दोबारा लिखो। जब एक बंदे को एक बार एक चीज़ कई दफ़ा लिखनी पड़े तो बड़ी नफसियाती सी बात है, बंदा तंग आ जाता है। लिहाजा दुआ करते थे कि मौलाना किसी दूसरे शहर चले जाए, और अक्सर दुआएं कबूल की होती थी। मौलाना ऑल इंडिया लीडर थे, वो मुख्तलिफ शहरों में उनको जाना पड़ता था जलसों के लिए, जुलूसों के लिए, मीटिंगों के लिए, तो अक्सर वो दफ्तर से बाहर ही रहते थे। जब मौलाना दफ्तर नहीं होते थे तो दफ्तर में सुकून से काम होता था और जल्द होता था। मौलाना के होते हुए शोर शराबा ज़्यादा है, चहल पहल ज़्यादा है, और लोगों को बार बार वो चीज़ करनी पड़ती थी। इबारत की गलती है तो दोबारा लिखो, हैंड राइटिंग की गलती है, दायरों की बनावट की गलती है तो भी दोबारा लिखो। लिहाजा लोग दुआ करते थे आपके दफ्तर के कि आप कहीं दूर चले जाए। मगर अजीज तुलबा, ज़हन में रखिए, इससे गलत मतलब ना लीजिएगा। वो मौलाना से मोहब्बत भी बहुत करते थे, मौलाना की काबिलियत के कदरदान भी बहुत थे। अगर वो वाकई तंग आते तो तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जो मौलाना के साथ अखबार में काम करते थे। उनको अगर कोई दूसरी अखबार वाले कहते कि आप इनको छोड़ के हमारे पास आ जाएं, आपको ज़्यादा बेहतर मुआवजा देंगे, तो बेटा ज़हन में रखिए कोई शख्स छोड़कर जाता नहीं था मौलाना को। बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं एक नौकरी से तंग आया हुआ हूँ, मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी, मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा। मगर मौलाना से वो तंग भी थे, मगर कोई शख्स भी मौलाना को छोड़ना नहीं चाहता था। इसकी वजह क्या थी? एक बात तो ये थी, मौलाना से ज़ाती मोहब्बत और अकीदत थी। दूसरी बात तो मौलाना की काबिलियत के मोतरफ थे। वो जानते थे कि मौलाना के साथ रहेंगे तो हम भी कुछ सीख जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। मौलाना के साथ जितने लोगों ने ज़िंदगी गुजारी वो आने वाले वक्त में बहुत कामयाब साबित हुए। तो बज़ाहिर मौलाना से तंग भी आ जाते थे, लेकिन मौलाना को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो अब बढ़ते हैं जी, ये आखिरी पैराग्राफ तीसरे पेज का। मौलाना की मौजूदगी में दफ्तर में चहल पहल रहती थी, दूसरों को शेर सुनाए भी जाते थे। एक और बात मैं बताना भूल गया, नित नई तजावीज़। मौलाना नए नए प्लान बनाते रहते थे, नई नई तजावीज़ होती थी, उन पर काम शुरू करते थे, लेकिन महज चंद दिन ही काम होता था, फिर कोई और नई बात ज़हन में आती थी तो उसको छोड़ के नए काम पे लग जाते थे। इसको भी किसी हद तक शख्सी खामी आप कह सकते हैं कि देखिए, एक काम जो शुरू किया जाए उसे आखिर तक पहुंचाना चाहिए। आप एक काम करें, छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दें, छोड़ के तीसरा काम शुरू कर दें, आपका वक्त, ताकत, तवानाई ज़्यादा ज़ाया होती है और उसका मसरफ इस्तेमाल कम होता है। तो बहरहाल मौलाना में आदत थी कि नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करते थे और फिर उनको छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चल पड़ते थे। अजीज़ तुलबा, बढ़ते हैं आखिरी सफ़े की तरफ, जिसकी तफसील मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सफ़ा नंबर 4 पे दो पैराग्राफ हैं। दूसरों की हौसला अफजाई करते थे। राकम यानी राइटर हसरत ने फ़काहात, मज़ाहिया कालम लिखने तो उन पर दाद भी दी, उनको इनाम भी दिया। मौलाना के दफ्तर से दूर रहने की दुआएं करते थे और अक्सर उनकी दुआएं कबूल भी हो जाती थी। आपको बताया, मौलाना को अखबार की ज़बान यानी लैंग्वेज और सेहत का पूरा ख्याल रहता था। छोटी छोटी बातों पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, बार बार करेक्शन करवाते थे। जुजियात पर गहरी नज़र थी। अखबार के मयार पर वो कोई समझौता नहीं करते थे। अजीज तुलबा, आम किताब लिखी जाए तो मुसन्निफ का वक्त होता है जितनी देर में चाहे मुकम्मल कर ले, लेकिन अखबार ने रोज़ निकलना होता है। बाज़ों का ऐसा भी होता था कि बार बार ठीक करने के बाद इतना टाइम आ जाता था कि अब सुबह अखबार निकालना मुमकिन नहीं होता था। तो वो कहते थे कि ऐलान कर दो सुबह अखबार नहीं निकलेगा। अखबार न निकलने में मौलाना का माली नुकसान भी होता था, लेकिन वो कहते मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, मगर गलत अखबार आवाम तक नहीं पहुँचना चाहिए। नुकसान बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन गलत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो गैर मेयारी अखबार शाया करने से अखबार शाया ना करना बेहतर समझते थे। अमले को बुला के कह देते थे कल अखबार ना निकाला जाए, इसमें बहुत सी गलती हैं। गलती पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। यही वजह है कि ज़िम्मेदार अपने वक्त का एक बड़ा अखबार था। जिस तरह मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने वक्त की एक बड़ी शख्सियत थे, बरे सगीर के अजीम तरीन रहनुमाओं में शामिल थे, जिनके बारे में हमने तफसील से बहस की। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का सबक मुकम्मल हुआ, जो हमने 4 लेक्चर्स में मुकम्मल किया।
یقیناً جس میں آپ کے لیے معلومات کی باتیں ہوں گی، ان کو آپ توجہ سمجھیے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم سبق ہے۔ اگر آپ نئے یوزرز ہیں، آپ نے ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے تو CMM لیکچرز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔